Hello, good morning, bachcho. Now today I am going to start the next chapter. That is actually fifth chapter as per your syllabus, but this is the third chapter, surface chemistry. I am going to start today. And what are the objectives for the today's session? We will learn about the concept of adsorption and absorption. Then we will learn about adsorbate and adsorbent. We will try to understand the meaning of these two terms. What are the different types of adsorption? Physical and chemical adsorption, these are the two main type of adsorption. We will learn about their properties and application of adsorption. At the end of the session we will learn about it, but as per your NCERT book it is given after the adsorption isotherm. So these are the objectives for the today's session. So let me start the topic. This is the third chapter and I hope all of you have completed your two chapters, that is the solution and solid state. Is it clear? So first of all, what is surface chemistry? As the name of the chapter is surface chemistry. So what does it mean? It means in this chapter we are going to learn about the phenomenons which occurs at surface, or we can say interface. So in this branch of chemistry we will learn about all those phenomena which take place at surface or interface of the two medium. So just see here, there are two materials, material A एंड मटेरियल बी. दो मटेरियल है बच्चों यहाँ पर, आप दोनों में ज़रा देखो ध्यान से. नाउ दीज आर द रेड पार्टिकल्स सोन हियर. दीज रेड पार्टिकल्स आर इन द सराउंडिंग ऑफ मटेरियल ए, and again in part B, which is also denoted by material B, it is also surrounded by red particles. But what is happening here, you can see that in case of A, all the particles are just residing on the surface, they are not going inside the bulk. यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है रेड पार्टिकल इन केस ऑफ मटेरियल बी वो बल्क में जा रहा है. बल्क का मतलब क्या हो गया, इनसाइड द मटेरियल. सो ये दो फिनोमिनन है जिसको आप अलग अलग नाम देते हो, केवल एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस होता है. इन फर्स्ट केस इट इज़ कॉल्ड एडजॉर्प्शन and in second case it is called absorption. There is only difference between D and B. Is it clear? Okay, you can see here again what is happening. Now see here, these are the molecules. These molecules are residing on the surface, they are not going inside the material A. Suppose this material is denoted by A, but in case of material B, these molecules just go inside the material, and if the particles of one substance is present inside the other substance, or it is present inside the bulk of another substance, then that phenomenon is called absorption. But in first case, in case of material A, what is happening, on the substance A the particles of another substance B is accumulating only on the surface, and this type of phenomenon is called adsorption. So how can we define, or before defining the adsorption, you may see here, suppose this is activated charcoal, and in this activated charcoal what is happening, the gaseous molecules from the surroundings are adsorbed on the surface of activated charcoal. तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्टिवेटेड चारकोल के सराउंडिंग्स इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब्ड हो जाते हैं. सो नाउ वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज एडजॉर्प्शन. द accumulation of a substance at the surface rather in the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption. Now there are two terms, adsorbate and adsorbent. So what are adsorbate? The molecular species or substance which concentrates at the surface is called adsorbate. जो substance surface के ऊपर आएगा
उसको एडजॉर्बेट बोलते हैं। एंड द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच द एडजॉर्प्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। जैसे अभी पिछले यहाँ पर आपने देखा एक्टिवेटेड चारकोल क्या हो जाएगा आपको, इट इज एडजॉर्बेंट। और ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है दीज आर एडजॉर्बेट। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू डिफरेंट टर्म्स, व्हाट आर एडजॉर्बेंट एंड व्हाट आर एडजॉर्बेंट। इज इट क्लियर? तो एडजॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमेनन है विच अकर एट द सरफेस। एंड एडजॉर्बेट क्या है, वो सब्सटेंस है जो सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब्ड होगा। और एडजॉर्बेंट क्या है, वो सब्सटेंस है जो एडजॉर्ब करेगा। ठीक है ना? ओके, सो नाउ हियर एक्टिवेटेड चारकोल इज एडजॉर्बेंट एंड these gaseous molecules are adsorbate. Okay, now there are two different type of adsorption. Before going to the main type of adsorption, one is called positive adsorption. We will learn about this term, positive adsorption, and negative adsorption. So what is positive and negative adsorption? इसका मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब हो गया कि अगर इफ कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट, जो वर्ड है उस पर ध्यान देना, एडजॉर्बेट इज मोर एट सरफेस as compared to its concentration in bulk phase। यानी कि सरफेस पर अगर जो एडजॉर्बेट है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो पॉजिटिव होगा, और अगर सॉल्यूट लेस अमाउंट में एडजॉर्ब होता है सरफेस पे, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? सो नाउ बिफोर मूविंग टू द टॉपिक टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन? So we can write the topic here, it is not mentioned in the objective. Mechanism of adsorption। ये एक्चुअली एडजॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है वो क्यों होती है और उसमें थर्मोडायनेमिक्स का क्या रोल है। तो एडजॉर्प्शन को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कोई भी अगर एडजॉर्बेंट है तो एडजॉर्बेंट के जो पार्टिकल सरफेस पे, सपोज करो यहाँ पर एक जो पार्टिकल है और जो पार्टिकल आपको बल्क में है, सपोज द पार्टिकल इनसाइड द बल्क इज डिनोटेड बाय ब्लू। तो ये जो पार्टिकल सरफेस पे है और जो पार्टिकल बल्क में है, इन दोनों के पार्टिकल के सराउंडिंग से जो फोर्स लगता है उसके ऊपर हमें विचार करना होगा। वी हैव टू थॉट अबाउट दैट। नाउ एक्चुअली द पार्टिकल एट बल्क, सपोज इट इज डिनोटेड बाय A, and particle at surface is denoted by A, and the particle in bulk is denoted by B. So what can you say? Particles on the surface, suppose particle at surface is A, are not surrounded by atoms or molecule of their own kind on all sides. Suppose it B, it is surrounded from particles of its own kind, अपने जैसे ही पार्टिकल से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जबकि जो पार्टिकल ए है जो सरफेस पे है उसको उस तरह का सराउंडिंग नहीं मिल रहा है। इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर ओन काइंड। इस पॉइंट को मैं मेंशन कर देता हूँ, मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्या है पॉइंट? पार्टिकल्स ऑन द सरफेस आर not surrounded by atoms
or molecules of their kind on all sides। अपने तरह के पार्टिकल्स को चारों तरफ से इक्वली नहीं घिरा हुआ है, हेंस इसका परिणाम क्या होगा, पोजेज अनबैलेंस्ड और रेसिड्यूअल अट्रैक्टिव फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म को समझने के लिए। जो पार्टिकल बी है ये तो चारों तरफ से बैलेंस्ड फोर्स फील कर रहा है, लेकिन ये जो पार्टिकल ए है इसके पास क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, रेसिड्यूअल फोर्स होगा। ये पहली पॉइंट हो गई। अब इसका परिणाम क्या होगा, अब अगर ये रेसिड्यूअल फोर्स इसके पास है तो इसका नतीजा क्या होता है, उसके सरफेस एनर्जी पे आती है। इट मीन्स द सरफेस पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी। सरफेस पार्टिकल के पास क्या होगी, हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, सरफेस पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी, और उसके पास जब ज़्यादा एनर्जी है, हेंस रिलीजेज एनर्जी ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन। बच्चों देखो क्या है, ये जो पार्टिकल ए है ये पार्टिकल ऑन बैलेंस्ड फोर्स में है। ये अपने सराउंडिंग से, अगर हम सराउंडिंग के पार्टिकल्स को जैसे यहाँ पे ग्रीन डॉट से दिखाऊं तो सराउंडिंग के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके पास जो अपनी सरफेस एनर्जी है, जब ये अट्रैक्ट करेगा और वहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन की फिनोमेनन होगी तो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज कैसे करेगा, एनर्जी रिलीज करके करेगा। और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो हम कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन फिनोमेनन है, एब्जॉर्प्शन फिनोमेनन इज एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू निगेटिव। क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या था कि जो पार्टिकल है सरफेस पर उसके पास रेसिडुअल फोर्स होगा, इट इज नॉट सराउंडेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ इट्स ओन काइंड। और इस कारण से द पार्टिकल्स विच आर present at the surface having more surface energy and they will attract the particle from the surrounding। और जब अट्रैक्ट करेंगे और सराउंडिंग के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेंगे देन देयर इज डिक्रीज इन एनर्जी। और जब डिक्रीज इन एनर्जी होगा ड्यू टू द सरफेस फिनोमेनन दैट इज एब्जॉर्प्शन, वी कैन से इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। तो पहला पॉइंट हमारा जो हम रीजन जो पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म, उसमें एक पॉइंट निकल के आया, डेल्टा एच शुड बी निगेटिव। अब थर्ड पॉइंट जरा डेल्टा एच के बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करो, जो मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होता है ऑन सरफेस, सपोज करो ये ग्रीन पार्टिकल्स यहाँ से एड्जॉर्ब होकर वो यहाँ पर चला आया, वो यहाँ आ गया। ये ग्रीन पार्टिकल जब यहाँ एड्जॉर्ब होकर सरफेस के ऊपर चले आएंगे तो क्या होगा, इसकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब्ड ऑन सरफेस इट्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट डिक्रीजेस। बच्चों फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या है, एंट्रोपी है, डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैकेनिज्म को समझने के लिए चौथी पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। अब आप जानते हो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब व्हाट आर यू सीइंग है, डेल्टा एस निगेटिव है, तो डेल्टा एस निगेटिव हो गया, इसका मतलब है कि ये पार्ट आपका तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी को निगेटिव होना होगा।
तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट डेल्टा एच शुड बी सफिशिएंटली हाई, इसको बहुत हाई होना पड़ेगा। आगे बात समझ में बच्चों। तो मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है? बिकॉज द पार्टिकल्स एट द सरफेस आर नॉट surrounded by the particles of its own kind from the surrounding and then it has a residual force, और जब उसके पास रेसिडुअल फोर्स होगी, कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, देन इट हैज़ अ हायर सरफेस एनर्जी एंड इट अट्रैक्ट्स द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, और दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है। जब वो अट्रैक्ट करेगा एंड द फिनोमेनन ऑफ एडजॉर्प्शन विल टेक प्लेस, देयर इज द रिलीज इन एनर्जी, दैट्स व्हाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब एक पार्टिकल एड्जॉर्ब्ड हो जाता है, जब पार्टिकल एड्जॉर्ब्ड हो जाता है तो वो पार्टिकल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो डिक्रीज कर जाती है, इसका मतलब है डेल्टा एस भी निगेटिव हो जाता है। और फाइनली इन ऑर्डर टू द गेट द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी शुड बी यानी डिग्री गिव्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस शुड बी सफिशिएंटली हाई। तो कहीं ना कहीं एड्जॉर्प्शन की जो फिनोमेनन है बच्चों, वो 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। पार्टिकल एट सरफेस में यहाँ लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट अनबैलेंस्ड, वो सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं अनबैलेंस्ड होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और उनके पास हाई एनर्जी होती है। इज इट ओके? तो आपको बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया कि एक्चुअली जो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर एडजॉर्प्शन और उसका मैकेनिज्म क्या है। तो अब एक छोटा सा हम लोग डिफरेंस यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये हमने ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखा है बट यू शुड नो अबाउट इट। फर्स्ट पॉइंट बच्चों लिख लो, सरफेस फिनोमेनन है एडजॉर्प्शन, इसको आप सरफेस फिनोमेनन लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आई शुड ऑल्सो नोटेड अबाउट इट। दिस इज बल्क फिनोमेनन, ये क्या है आपका बल्क फिनोमेनन है। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, सर जो एडजॉर्प्शन है वो सरफेस पे होता है और ये बल्क में होता है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है यहाँ पर जो एडजॉर्प्शन होता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जैसे अभी आपको हमने डिस्कस किया एक्सोथर्मिक, और ये जो होता है नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। यहाँ एनर्जी का कोई ऐसा नहीं है कि एनर्जी की एनर्जी अब्जॉर्ब होता है, एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट जो आप लिख सकते हो कि डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन सरफेस, और इसके बारे में लिख सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस। इट क्लियर? अच्छा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की अगर बात करो, चौथा पॉइंट अगर आप फोर्थ पॉइंट लिखो, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, जब आपको बच्चों एडजॉर्प्शन शुरू होगा यानी सरफेस जब पूरा का पूरा सरफेस ही खाली होगा, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है रैपिड होता है इन बिगिनिंग, शुरू में, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन का रेट है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म रेट से होता है, उसमें ऐसा नहीं कि शुरू में बहुत फास्ट होगा। These are the basic difference between adsorption and absorption. It clear? तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। So now type of adsorption, there are two types: physical adsorption, chemical adsorption, and the difference between these two type of adsorption is totally based upon these two terms, physical and chemical. You have already learned about the process, physical process and chemical process. So you can see here what is shown there about the physical adsorption. These are the molecules which are adsorbed on the surface, and here there is a bonding. So
we will learn about these two terms in the next slide. So what is physical adsorption? If accumulation of gas on the surface of a solid occurs account of weak van der Waals force। यहाँ पर बच्चों जो मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब्ड हो रहा है यानी जो एड्जॉर्बेट है और वो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इट इज़ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज़ van der Waals फोर्सेस। तो इसका मतलब हो गया अगर वीक van der Waals फोर्सेस के कारण कोई फिनोमिनल एड्जॉर्प्शन की होती है तो उसको हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन, शॉर्ट फॉर्म में फिजियोजॉर्प्शन बोलते हैं। ओके, थोड़ा सा इससे कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लें एंड लेटर ऑन इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस भी इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या हो गया? नॉन स्पेसिफिक। इसको आप सिंपल कह सकते हो नॉन स्पेसिफिक। देखो यहाँ पर बच्चों क्या है कि van der Waals फोर्स के कारण ये होता है तो कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ही आके एड्जॉर्ब होगा ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। अ गिवन सरफेस ऑफ एन एड्जॉर्बेंट डज नॉट शो एनी प्रेफरेंस। यहाँ कोई प्रेफरेंस नहीं है पर्टिकुलर गैस या मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि van der Waals फोर्स क्या है? यूनिवर्सल फोर्स है। जबकि केमिकल फोर्स जो होती है, केमिकल जो बॉन्डिंग होती है, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है कि कौन से मॉलिक्यूल किसके साथ बॉन्डिंग करेगा और तब एड्जॉर्ब्ड होगा। तो पहला पॉइंट है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। दूसरा है रिवर्सेबल इन नेचर, यानी अगर मॉलिक्यूल जो एड्जॉर्ब्ड हो गया जनरली वो रिवर्स्ड हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो मॉलिक्यूल फिर से उस सरफेस को छोड़कर वापस से एटमॉस्फेयर में या जा सकते हैं, जो एड्जॉर्ब्ड है पार्टिकल्स वो उसके सरफेस से बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर दो टर्म्स हैं, उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो, एक तो बच्चों आपका है टर्म एड्जॉर्प्शन, एक है एब्जॉर्प्शन। इन दोनों को अगर कंबाइंड कर दो तो एक सिंगल टर्म बनता है जॉर्प्शन। एक टर्म है आपका डीजॉर्प्शन। डी का मतलब हमेशा याद रखना बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो डी मीन्स रिमूवल के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो डीजॉर्प्शन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, यानी जो मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब्ड हुआ और उसका रिमूवल हो जाए। तो यहाँ पर क्या आपको जो रिवर्सेबल इन नेचर होता है, पार्टिकल्स जो एड्जॉर्ब्ड है वो डिजॉर्ब्ड भी हो सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इसका मतलब है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। और आप जानते हो कोई सॉलिड सब्सटेंस है अगर उसको आप पाउडर्ड कर दो तो उसका क्या होता है? पाउडर्ड फॉर्म में करने का सरफेस एरिया बढ़ जाती है, लार्जर सरफेस एरिया हो जाती है, तो एड्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। ठीक है ना? तो द सब्सटेंस हैविंग लार्ज सरफेस एरिया आर गुड एड्जॉर्बेंट्स, दे कैन एड्जॉर्ब द सब्सटेंसेस। और ऐसा तो आपको। अब बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन का बच्चों मतलब क्या होता है? एक्चुअली इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन का मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। सपोज करो कि 1 मोल सब्सटेंस एड्जॉर्ब होता है और उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, बिकॉज ये जस्ट वी स्टडीड दैट एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होगा वहाँ पर वीक van der Waals फोर्स है, तो एड्जॉर्प्शन के दौरान जो इंथैल्पी चेंज होती है वो बहुत लो होती है। सिर्फ इसलिए ऐसा क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड सरफेस क्या है? वो वीक van der Waals फोर्स के कारण है। तो ये आपको 3-4 पॉइंट समझ में आ गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज पॉइंट्स विल बी यूज टू राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। पहला है कि फिजिकल में नॉन स्पेसिफिक है, दूसरा है रिवर्सेबल इन नेचर है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से एड्जॉर्प्शन का रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, और इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन की जो वैल्यू होती है वो क्वाइट लो होती है। क्लियर? नाउ केमिकल एड्जॉर्प्शन, व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स or atoms are held to the solid surface by chemical bond. Now the chemical bonds are stronger bonds than the van der Waals forces. तो टर्म से ही आप समझ रहे हो ना, केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ लो। हाईली स्पेसिफिक जो इसकी प्रॉपर्टीज है, केमिजॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफाइड
it will occur only if there is some possibility of chemical bonding. जब तक chemical bonding की possibility ना हो, किसके बीच में, adsorbent और adsorbate के बीच में. Irreversibility यानी अगर एक बार मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब्ड हो गया तो उसका इरिवर्सिबल नेचर होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ तो केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है. नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन, यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के डिफरेंस को यहाँ पॉइंट वाइज जरा देख लीजिए. देयर आर 11 पॉइंट्स. दिस टाइम एक्सप्लेनिंग ऑल दोज पॉइंट्स. सबको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. occurs due to van der Waals force, due to chemical bond. It is reversible, irreversible, नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक. नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया? किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं है. इट इज़ यूनिवर्सल. यहाँ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है प्रोसेस जहाँ एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में केमिकल बॉन्डिंग हो. इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज लो, हाई. मोर लिक्विफेबल गैसेज आर एड्जॉर्ब रेडियली. अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जहाँ हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करेंगे. हमारे नेक्स्ट सेशन में बात आएगी. डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. यहाँ बच्चों क्या है, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो van der Waals फोर्स ऑटोमेटिकली वीक है, वो ब्रेक कर जाएगा और आसानी से डिक्रीज करेगा. यानी एड्जॉर्प्शन होने नहीं देगा. मॉलिक्यूल जो एनर्जी गेन करके सरफेस छोड़कर डिजॉर्प्शन कर लेगा. और यहाँ पर क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है. ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. ले चैटेलियर का प्रिंसिपल आप पढ़ते हो, तो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग होगी, इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. लो टेम्परेचर फेवरेबल है, हाई टेम्परेचर फेवरेबल है. ठीक है ना. हाई प्रेशर फेवर्स फिजियोजॉर्प्शन. अगर प्रेशर ज़्यादा हो गैसेस मॉलिक्यूल्स का तो ज़्यादा से ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा. रिजल्ट्स इन मल्टी मॉलिकुलर लेयर्स. यहाँ कई लेयर बन सकते हैं. यहाँ पर एक बार अगर एड्जॉर्बेंट के सरफेस से बॉन्डिंग हो गई तो मल्टी लेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता. नो एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड. चूँकि ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन है तो यहाँ किसी तरह की एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है. हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड. इट इज़ इंस्टेंटेनियस, इट इज़ स्लो प्रोसेस. ये कभी भी अचानक से होता है मॉलिकुलर सरफेस पे और ये धीरे धीरे प्रोसेस होता रहता है. ये क्लियर. सो नाउ एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड. You can see here the three terms. This is adsorption, surface में molecule आकर रिसाइड कर गया. This is absorption, molecule goes inside the bulk. और यहाँ surface में molecule वापस return back हो रहा है, that is desorbs. Is it clear? तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया. Now I think the duration for the video should not more than the 30 minutes. So about the application of adsorption I will explain in my later section or in my second section. So I am completing my session here, not going to discuss about the application of adsorption because then it will again take more than 5 to 10 minutes and the length or duration of videos will be more than 30 minutes and many students have told that sir it should not be more than 30 minutes. So what did we study today? Just we study in this session that what is the meaning of the term surface chemistry, सरफेस फिनोमेनन क्या है, एड्जॉर्प्शन क्या है, एड्जॉर्बेट क्या है, एड्जॉर्बेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या है, वाई द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस, उसका मैकेनिज्म क्या है जहाँ पे हमने डेल्टा एच और डेल्टा जी की बात की थी, एंड द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन और पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन. इतना हम लोगों ने बच्चों आज पढ़ा. तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा एज आई होप. सो देर आर सम क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस हैं हम आपको दे रहे हैं. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड आई होप व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस यू विल आल्सो सेंड द आंसर एंड इफ देयर इज एनी difficulties faced by you may comment to me. Okay, so dear students, this is the first session I have completed. Thanks for watching. Like and subscribe my channel. You can also log into my blog. मेरे ब्लॉग पर आप लॉगिन करिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस हमारे मिलेंगे. तो ऑल द बेस्ट एंड टुडेज वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर एंड यू विल लर्न, you will make your own notes. So coming for the next session tomorrow, daily I am going to upload one videos from this chapter. So tomorrow we will learn about further about application of adsorption and then adsorption isotherm. Thank you. Have a nice day.